Good morning, class 11 students. Welcome back. We were doing the chapter kinetic fluid gases, where we discussed in the first video, which was quite lengthy video. We discussed what is the difference between real gas and ideal gas. Then we tried to find out when this real gas and ideal gas start behaving similar. Okay, that is at low pressure and high temperature. And then we discussed a big derivation depending on how to find the pressure exerted by an ideal gas. Okay, now I told you in the previous video that whenever we talk about kinetic theory of gases, mathematically we mean to say the formula of pressure 1 by 3 rho c square. Okay. Now everything now we'll do in this chapter afterwards is always related to that formula. Okay. The first is the relation between pressure and kinetic energy per unit volume. Pressure and kinetic energy per unit volume के बीच में difference पड़ेगी. Now see, in the book it's written as relation between pressure and kinetic energy of gas, but that is not kinetic energy of gas, that is kinetic energy per unit volume of the gas. ये ध्यान रखना book में, ठीक है ना? So what is the pressure expression? 1 by 3 rho c square. And what is kinetic energy expression? Half m c square. Velocity of gas is c, half m v square. But this is kinetic energy per unit volume. That is divided by volume. You understand why divided by volume? I am doing something different from the book. Okay, divided by volume. So can I say kinetic energy is half rho c square? So if I divide these two, P by K is equals to क्या हो जाएगा? 1 by 3, 2 by 3. आंसर आ गया, हो गया. The pressure equals to 2 by 3. बुक में इसमें E लिखा है, K को E लिखा है. So we got the expression. So we divide the expression in a different format from the book. बुक में ऐसा नहीं किया है, तो ये चीज ध्यान से देखो. अगर तुमको ये समझ में आता है तो ये ज्यादा अच्छा है. Why I am dividing by volume? Because we are calculating kinetic energy per unit volume. So what is this? This is kinetic energy per unit volume. Okay, this is not just kinetic energy. Do you understand, class? Okay. Next, we are interested in calculating average kinetic energy of a gas molecule. एक गैस मॉलिक्यूल का kinetic energy कितना होता है? पहले गैस का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और फिर गैस मॉलिक्यूल का निकालेंगे. पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. ठीक है ना? कैसे निकालना है सी. अगेन वी विल वर्क विद दिस एक्सप्रेशन P इक्वल्स टू 1 by 3 rho c स्क्वायर. ओके, अब मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना है. मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, तो कहना है हाफ m c स्क्वायर, वेयर m इज द मास ऑफ द गैस. ठीक है. And what is kinetic energy of a gas molecule? That will be half small m c square, where small m is the mass of one gas molecule. Okay, is it coming in the board? Because in the last video something was not coming on the board. Okay, so बस मुझे दिमाग में ये रखना है, गैस चाहिए तो मास चाहिए. कहीं पे मास है इधर नहीं, तो मास कहां से आएगा? इन द प्लेस ऑफ डेंसिटी कहने से m by v c स्क्वायर. ठीक है, देखो m c स्क्वायर आ गया. क्या आ गया? m c स्क्वायर आ गया. तो बाकी चीज को उधर लेके जाओ. 3pv इक्वल्स टू m c स्क्वायर. ठीक है. अब मुझे प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर, टेम्परेचर के फॉर्म में चाहिए. तो वी नो pv इक्वल्स टू nRT by real gas equation. If I take 1 gram mole of gas, that means n is equals to 1. So what is pv? RT. I can say 3 RT is equals to mc square. अब मुझे किसका कमी है? हाफ का. दोनों में हाफ डिवाइड मार दो. 3 by 2 RT equals to half mc square. So this is what kinetic energy of gas. Mass of the gas is m. Root mean square velocity c is 3 by 2 RT. ये हो गया. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? kinetic energy of गैस मॉलिक्यूल में. तो देखो ध्यान से, 1 by 2 mc square equals to 3 by 2 RT. Now, इसमें मैंने कितना मोल लिया है गैस का? 1 मोल गैस लिया है. तो 1 मोल गैस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर्स के पार्टिकल्स होते हैं. सो व्हाट इज मास ऑफ द गैस? मास ऑफ ईच गैस पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? एवोगाड्रोस नंबर के बराबर है. क्यों है? क्योंकि मैंने 1 मोल गैस लिया है. In 1 mole of a gas, how many particles are there? Equals to Avogadro's number. So in the place of capital M, I can write small m into Na. C square equals to 3 by 2 RT. So what is half small m c square?
हाफ स्मॉल एन सी स्क्वायर चाहिए, इसको इतना रखो, बाकी को उधर लेके जाओ, 3/2 r by na t हो गया. Now we know what is r is k into n. So what is r by n? K. So 3/2 kt, where what is k? K is called Boltzmann's constant. So मैंने again book से अलग ड्राइव किया. So if you understand this language, you do it in this way. You note down this method, not the book method. Okay, class. You understand average kinetic energy of the gas molecule is 3/2 kt and average kinetic energy of the gas is 3/2 RT. ठीक है? Okay. Next, we will study how the RMS speed of the gas depends on temperature. Okay, that is kinetic interpretation of temperature. Kinetic interpretation. That how the kinetic energy depends on temperature. वो मुझे यहीं पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कर चुका है. कैसे? फिर से देखो. P equals to 1/3 rho c square, 1/3 m by volume c square. ठीक है? इसको 3 PV by m equals to c square लिख सकते हो. Now we know what is PV, nRT. अगर मैं 1 ग्राम मोल लू तो PV equals to RT आ जाएगा क्लास. तो यहां पे आ जाएगा 3 RT by m c square. अब for a fixed amount of gas, R and M are constant, so C square is proportional to T. That means this is very, very important. You need to understand the kinetic energy of the gas molecules only depends on temperature. Only depends on temperature. सिर्फ temperature पे depend करता है. It is independent of pressure, volume, everything. अब temperature पे depend करता है. ठीक है? ये जानना बहुत जरूरी है. Then after this, in the PDF you have what is absolute zero. Absolute zero मतलब क्या? ऐसा टेम्परेचर जब C 0 हो जाए, that means 0 Kelvin. At T equals to 0 Kelvin, the RMS velocity becomes 0. That is called absolute zero. This definition you need to study. Okay. Now, in the next part of this chapter, what is my job is? My job is we will use these all concepts to derive different gas laws. Okay. We will use kinetic theory of gas. This is called kinetic theory of gas. And we will derive different gas law. Boyle's law, Charles law. Boyle's law क्या बोलता है? Temperature constant. Charles law क्या बोलता है? Pressure constant. Okay. Dalton's law of pressure, Avogadro's law. These things we will derive now. Okay, class. The next topic in this chapter is gas laws from kinetic theory. What I will do, I will use kinetic theory and I will see how fundamental the kinetic theory is with respect to different gas laws. That means from kinetic theory we can derive all the gas laws. How? Okay, तो पहले तुम्हें गैस लॉज याद करने का तरीका बताता हूं मैं. ठीक है ना? तुम्हें सिर्फ याद रखना है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ याद रखना है, और गे-लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट है. उसके बाद वाला स्टेटमेंट तुम्हें याद करने का जरूरत नहीं है. देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं. बाद वाला स्टेटमेंट अपने आप आएगा. वी नो PV इक्वल्स टू nRT. इन अ बॉयल्स लॉ टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो मतलब ये पूरा चीज कांस्टेंट हो गया. मतलब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो यू डोंट नीड टू मग अप बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट दैट व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये याद करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद यहां से मिल जाएगा. जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करूंगा, प्रेशर इनवर्सली वॉल्यूम आएगा. So you only need to understand this. Only you have to remember this. That Boyle's law बोलता है टेम्परेचर कांस्टेंट. तो तुम इस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट करके देखो क्या किससे प्रोपोर्शनल आ रहा है. अब चार्ल्स लॉ निकालते हैं. अगेन PV इक्वल्स टू nRT. प्रेशर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो आपको वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया. तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो तुम्हें यहीं से मिल जाएगा यूजिंग द रियल गैस इक्वेशन. नेक्स्ट, गे-लुसाक लॉ. PV इक्वल्स टू nRT. वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. हो गया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हाउ टू मग अप द डिफरेंट लॉज. तुम्हें सिर्फ मग अप करना है कि कौन से लॉ में क्या चीज कांस्टेंट रहता है, बाकी अपने आप आएगा. अगर तुम्हें पता है बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो तुम ये वाला खुद से डिराइव कर सकते हो यूजिंग दिस क्राइटेरिया. PV इक्वल्स टू nRT. N और R तो कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो PV कांस्टेंट हो गया. मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. चार्ल्स लॉ प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, वॉल्यूम और टेम्परेचर बता दो, दे आर प्रोपोर्शनल.
गेलुसाक में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, प्रेशर और टेम्परेचर बचा, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गया। अब मैं इस एक एक करके प्रूफ करूंगा। सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, ड्राइव करते हैं बॉयस लॉ। तो सबसे पहले बॉयस लॉ को ड्राइव करने के लिए हाउ दे विल आस्क यू इन द एग्जाम, दे विल आस्क यू अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लाइक ड्राइव बॉयस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, डिराइव चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी, ऐसे करें। ओके, तो बॉयस लॉ ड्राइव करना, तो पहले तुम बॉयस लॉ लिखो। वी नो फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस, for a fixed amount of gas when the temperature of the gas is constant, pressure is inversely proportional to volume। वहां से मुझे पता चल रहा है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पता रट्टा मारना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा था? डोंट स्टार्ट मगिंग अप ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द बुक like an idiot, like a parrot. Try to use the concept, try to use different IQ things so that minimum mugging up we can do. Okay, अब मुझे ये प्रूफ करना है using kinetic theory कि pressure is inversely proportional to volume when the temperature is constant। तो यूजिंग काइनेटिक थ्योरी मतलब मुझे ये यूज करना पड़ेगा 1/3 रो सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें मुझे वॉल्यूम लेके आना पड़ेगा, तो 1/3 m/v c स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ओके, अब फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस दैट मींस दिस इज कांस्टेंट, मतलब pv। ओके, और वी कैन डू वन थिंग, PV इक्वल्स टू nRT आ जाएगा ना, ऐसा ना करके थोड़ा बुक से अलग करते हैं। ये जो सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है? वी नो सी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पढ़ लिया हमने पहले से। और यहां से क्या पता चल रहा है? सी स्क्वायर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मास इज कांस्टेंट, 3 is already a constant, only P into V depends on C square and C square depends on temperature, and since temperature is constant मतलब C square is also constant, तो कहने से P into V is a constant, and this P is inversely proportional to volume। हो गया, मैंने बुक से अलग नहीं किया, एग्जैक्टली बुक जैसा कर दिया। ठीक है ना, अलग करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करना पड़ेगा, अगर यू विल गेट कंफ्यूज, सो लेट्स मेक इट इन इजी वे। यहां से क्या पता चल रहा है? मुझे P into V चाहिए था, मैंने तोड़ के P into V लाया, और मैंने देखा कि P into V डिपेंड कर रहा है 1/3 m और c स्क्वायर। ये तीनों चीज कांस्टेंट होना चाहिए, देन ओनली P into V कांस्टेंट होगा, राइट? और जब P into V कांस्टेंट होगा देन ओनली आई कैन से P इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब कांस्टेंट होने के लिए मैंने बोला फिक्स अमाउंट ऑफ गैस दैट इज मास इज कांस्टेंट, डिपेंड कर रहा है c स्क्वायर पे, लेकिन c स्क्वायर डिपेंड करता है टेम्परेचर में। बट बॉयस लॉ क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब c स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब P into V कांस्टेंट है। क्लियर क्लास? नेक्स्ट लेट्स गो टू चार्ल्स लॉ। नाउ first we will define Charles law. Again, for a fixed amount of gas, when the pressure is constant, volume is proportional to temperature. ये हो गया Charles law। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे? Again, P equals to 1/3 रो c स्क्वायर, रो के जगह m/v c स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है क्लास? ओके, अब v इधर ले लो, हाफ m/p c स्क्वायर, क्योंकि v P constant होना चाहिए। Now, for a fixed amount of gas, that is mass is constant and pressure is already a constant. It's given in the Charles law. मतलब V is proportional to C square, and we know C square is proportional to temperature. That is, can I say V is proportional to temperature? हो गया, Charles law derive हो गया। Next, I have to go for Gay-Lussac law. Now, Gay-Lussac law क्या बोलता है? Again, define on its own. For a fixed amount of gas, okay, the volume of the gas is constant and pressure is proportional to temperature. चलो ये दिखा करते हैं। व्हाट इज प्रेशर? 1/3 m/v c स्क्वायर। ठीक है, और फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस मास इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट। इन Gay-Lussac लॉ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर, एंड वी नो c स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t। एवरीबॉडी इज यूजिंग दिस, राइट? c स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू t, मतलब p इज प्रोपोर्शनल टू t। p c स्क्वायर पे डिपेंड करता है, c स्क्वायर t पे डिपेंड करता है, मतलब v t पे डिपेंड करेगा। दैट इज ओनली Gay-Lussac लॉ। Clear class? Understood? Now, the last one you need to understand is what is Avogadro's law. This is quite interesting, huh? Avogadro's law. Avogadro's law क्या बोलता है? For two different gases of equal volume, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्लास, हाँ, and same temperature and pressure condition। दो टाइप ऑफ गैस है जिसका वॉल्यूम भी सेम है, सेम प्रेशर भी है, सेम टेम्परेचर भी है, देन देयर नंबर ऑफ मोल्स आर सेम।
मतलब उन दोनों गैस में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। क्लियर? दो टाइप का गैस लेंगे, उनका इक्वल वॉल्यूम लेंगे, उनका सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लेंगे, तब उनमें दोनों गैस में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहता है। और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के वी कैन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहता है। ठीक है, okay, number of molecules of the gas are same. Let me see what is the exact book definition. Yeah, number of molecules will remain same. So instead of writing moles, we can say number of molecules will remain same. This we need to prove. ठीक है, तो चलो क्या करते हैं। Let us say gas 1. Gas 1 का mass is m1, volume is v, temperature is T. Okay, small m1 is the gas 1 का एक एक पार्टिकल का mass. समझ में आ रहा है बेटा? Okay, gas 2. Total mass of the gas is capital M2. Volume will be same, temperature will be same, pressure will be same, Pp. Okay, and one molecule mass is M2. ठीक है, और इसमें number of molecules is small m1, इसमें number of molecules is small m2. अब कैसे डिराइव करना है ये समझो अच्छे से। यार क्या मतलब किस चीज को आधार में लेके मैं पूरा डिराइव करूंगा, मुझे कैसे याद है डेरिवेशन, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, ताकि तुम भी उसी चीज को लेके समझो उसको। मुझे पता है दोनों का प्रेशर इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों के प्रेशर के एक्सप्रेशन को इक्वल करूंगा। ठीक है, और मुझे पता है दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दूंगा, बिकॉज वी नो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 3/4 kT। पता है ना हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हाफ mc²। एक गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, मतलब दोनों गैस का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा पर मॉलिक्यूल का, और दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का प्रेशर का एक्सप्रेशन भी सेम होगा। तो अगर मैं गैस 1 के लिए, फॉर गैस 1 व्हाट इज प्रेशर, 1/3 ρ1, ओके, c1²। लाइक इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c1, इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी c2, c1²। ओके, एंड दूसरे गैस का फॉर गैस 2 प्रेशर कितना होगा, 1/3 ρ2 c2²। दोनों का प्रेशर इक्वल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, मतलब दोनों का वैल्यू सेम होगा, 1/3 ρ1 c1² इक्वल्स टू 1/3 ρ2 c2²। 1/3 कट गया। ओके, अब रो क्या है, मास बाय वॉल्यूम c1², मास बाय वॉल्यूम c2²। अगेन वॉल्यूम भी सेम है अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस डेफिनेशन। सो आई गॉट वन एक्सप्रेशन कैपिटल N1 c1² इक्वल्स टू कैपिटल N2 c2²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैंने यहाँ पे कौन सा कंडीशन इक्वल यूज किया, इक्वल प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम, दोनों यूज किया, कट के ये एक्सप्रेशन आया। अब मैं कंडीशन यूज करूंगा इक्वल टेम्परेचर। सिंस द टेम्परेचर इज इक्वल, तो वी नो 1/T m1 c1² इक्वल्स टू 3/2 kT एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2 m2 c2²। ये क्या किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस 2 डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बोथ द टेम्परेचर आर सेम, दैट इज द टू आर इक्वल। तो यहां से ये कट जाएगा, तो कितना है, स्मॉल m1 c1² इक्वल्स टू स्मॉल m2 c2²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, तो कैपिटल M1 c1² बाय स्मॉल m1 c1², कैपिटल M2 c2² इज स्मॉल m2 c2²। ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया, कैपिटल M1 बाय स्मॉल m1 इक्वल्स टू कैपिटल M2 बाय स्मॉल m2। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाना है, तो गैस में कितना मॉलिक्यूल्स है, N1, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, M1। टोटल गैस का मास है M1, तो कह रहे हैं N1 M1, टोटल गैस का मास M1 है, और उस गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो N1 number of molecules into gas of into mass of one molecule is the total mass of the gas is equals to N2 M2 by M2। तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, M equals to NM समझ में आया, क्या किया मैंने, एक गैस में 5 मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, उस गैस का जो मास होगा दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो उस गैस का टोटल मास इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। वही मैं कर रहा हूं, टोटल गैस का मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ओके, तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों में सेम होगा। दैट इज द एवोगाड्रोस लॉ से दैट इफ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस having different masses, having different root mean velocity, okay, but if the temperatures are equal, if the pressures are equal, if the volumes are equal, if all the conditions temperature pressure volume तीनों equal हुआ अगर दो gases का, तो उनके अंदर number of molecules भी
इक्वल होगा. Okay class, you understand these things? Okay, now we left with the last topic, that is called as degree of freedom. Okay, we need to study what is degree of freedom and all. So let's continue this in this video only. Okay class, the next topic is DOF, that is degree of freedom. Now what is basically a degree of freedom? Okay, I am not talking about the definition. The definition you will study from the definition. And when the definition comes, you will write exactly the definition what is given in the book. The definition says it is nothing but the number of coordinates or independent quantities which are required to completely express the position and configuration of a particle. एक पार्टिकल कहाँ पे है और कितने तरीके से वो मूव कर सकता है, उसको दिखाने के समान को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेम सजेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम. इन अदर वे अराउंड वी कैन से इन हाउ मेनी वेज इट कैन फ्री टू मूव. ओके, वी कैन से दिस, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन क्लास. आई एम जस्ट converting into a normal language day to day life so that you can understand nicely. In how many ways they can free to move, in how many ways the particular molecule, if it is a monoatomic, diatomic, triatomic, ओके, तो उसमें कितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है वो और कितने तरीके से वो मूव नहीं कर सकता है. दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, अगर डेफिनेशन का बात करें, इट इज अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स तीन ही होते हैं ना, एक्स वाई जेड. ओके, तो ये वो वाला कोऑर्डिनेट नहीं है. बिकॉज नंबर ऑफ वेज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, कितने तरीके से वो इंडिपेंडेंट है जाने के लिए, मूव करने के लिए. ओके, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम. What I mean to understand is that how to calculate degree of freedom. So if I say this is degree of freedom, DOF. So n is nothing but 3a minus r. ये फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा आपको. n is 3a minus r. Now what is a? A is the number of atoms in the molecule and r is the number of independent relation. So in the book it's written, let me talk about the book. Independent relation, number of independent relation. In the book they have written like this: number of independent relation. I am saying it is number of constants. Okay. Also sometimes there's bonds. ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. Constraints और bonds क्या मतलब है? Okay, एक एक करके बात करते हैं तब तुम्हें समझ में आएगा. If I say monoatomic, now when I say monoatomic molecule और मोनोएटॉमिक गैस, तुम्हें इसके एग्जांपल्स को रट्टा मार के रखना पड़ेगा. ठीक है, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2 हो जाता है, हीलियम गैस. ओके, तो ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक गैस है. तुम्हें गैस दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा गैस का, तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक है. देन ओनली यू कैन डिराइव. ठीक है, सो मोनोएटॉमिक मतलब क्या? वन एटम है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 into number of atom is 1 minus r is 0. Now how come r is 0? This you need to understand. एक ही एटम है, ये किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, तो it can freely move in all directions. That means there is no relation, there is no dependency. There is no dependency. It is independent in every direction. This is 0. So number degree of freedom is 3 for a monoatomic molecule. What you need to remember? You need to remember the examples. If you know the example, then only you can do the question. For example, एग्जाम पूछेगा calculate the degree of freedom for an argon gas or a neon gas or a helium gas. तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, helium, argon, neon gas is a monoatomic molecule. Then only you can calculate, isn't it? Okay, next, diatom. If I talk about a diatomic gas, for example, hydrogen gas, oxygen gas, that means 2 atom. Okay, this is a 2 atom, oxygen, hydrogen. इसमें अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3 into 2, नंबर ऑफ एटम्स इज 2 एंड हाउ मेनी इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग देम. दोनों आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं? तो दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में जुड़े हुए हैं. मतलब ये इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इतना तो रहेगा ही. हाँ, पूरा इधर जा सकता है, पूरा इधर जा सकता है. तो इस एटम को ये इधर मूव नहीं कर सकता, ये एटम इधर मूव नहीं कर सकता. ओके, ये बॉन्ड में तो टूट जाएगा. ये इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता. सो indirectly in a simple language we can say number of constants. तो एक डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं जा सकता, that means 1.
Okay, so how much it is? 6 minus 1. 5 degree of freedom we have in a diatomic molecule. Next, triatomic molecule or triatomic gas. Okay, H2O. Okay, sulfur dioxide, H2O, SO2. Okay, H2S, hydrogen sulfide. These are the triatomic gas. इसमें कितने एटम होते हैं? 3 एटम होते हैं. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. Triatomic gas are of 2 different types class. One is called linear, जिसमें ऐसा हो गया एटम्स, और वन इज कॉल्ड नॉन लीनियर, जिसमें ऐसे हो गए एटम. अगर लीनियर का बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 into number of atoms 3 minus how many relations? 2 relations, independent relations, 2 constants. ये इधर उधर नहीं जा सकता, ये इधर उधर नहीं जा सकता. ओके, 9 minus 2 7. नॉन लीनियर में 3 रिलेशंस है. ये इधर नहीं जा सकता, ये इधर नहीं जा सकता, ये दोनों पार्टिकल्स ऐसे ऐसे घूम नहीं सकते, ये ऐसे ऐसे नहीं जा सकते, ये ऐसे ऐसे नहीं जा सकते. तो कितना हो जाएगा? 3 into number of atoms 3 minus 3, that is 6. कितनी? 9 minus 3, 6. So 6 degree of freedom for a non-linear triatomic gas, 7 degree of freedom for a linear triatomic gas. Okay, so this is the basic concept of degree of freedom and how to calculate degree of freedom of different types of gas. Now, the next, a very important which will definitely come in examination is what is law of equipartition of energy. And this very simple thing is that we only have definition in the syllabus. Equipartition of energy. ये बहुत जरूरी है बेटा, ये पक्का आएगा एग्जाम. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये लॉ क्या बोलता है? एक डायनामिकल सिस्टम है मेरे पास. डायनामिकल सिस्टम मतलब एक सिस्टम जो मूव करता है. ओके, उसे मान लो बहुत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. There are many molecules out there. In a dynamical system, if there are many molecules, that system has some energy inside it. उसमें कुछ एनर्जी है. वो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारे मॉलिक्यूल्स में. और समझ में आ गया पहला स्टेटमेंट. एक डायनामिकल सिस्टम है, सिस्टम विच इज मूविंग. फर्स्ट, इट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स. द टोटल एनर्जी सिस्टम ऑफ द डायनामिकल total energy of the dynamical system is equally distributed to all the molecules, and per molecule per degree of freedom की तरफ कितना एनर्जी होगा? half kT. This is law of equipartition of energy. I'm reading the book language. According to this law, for any dynamical system in thermal equilibrium, that is temperature is constant, the total energy is distributed amongst all the degree of freedoms, and the energy associated with each molecule per degree of freedom is half kT. वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है among all the molecules. मैंने वो जो बोला है बुक में बोला है अलग है, लेकिन सेम है, कंडीशन सेम. मैंने बोला वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारा मॉलिक्यूल. बुक में बोला वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, एक ही बात है. एंड एक मॉलिक्यूल का पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होगा? हाफ kT. दिस इज ऑल डेफिनेशन व्हिच इज स्टडी. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस डेफिनेशन, व्हाट आर द थिंग्स which will come in examination? One, the definition will come. Next, the application of this definition to find the value of Cp and Cv, that is specific capacity at constant volume and specific capacity at constant pressure का value निकालो using the law of equipartition of energy and using the kinetic theory. This is my last topic of this chapter. Okay, so the last topic is value of Cp and Cv using law of equipartition of energy. Equipartition of energy. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? For all the cases we will have 1 gram mole of gas. 1 gram mole of gas. Okay. ये Cp and Cv वाले किसका निकालेंगे? We have 3 different types of gases we studied now. Monatomic, diatomic, triatomic. ये तीनों का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे. मोनोएटॉमिक का सीपीसीबी का वैल्यू निकालेंगे, डायटोमिक का निकालेंगे एंड ट्राइएटोमिक का निकालेंगे. ट्राइएटोमिक के जगह में फिर से 2 केसेस है, लीनियर एंड नॉन लीनियर. वो दोनों हम करके दिखाएंगे. ओके, मे बी ऑल द डेरिवेशंस आई विल नॉट डू द बोर्ड, बट उतना कर दूंगा कि तुम्हें बाकी समझ में आए. ध्यान से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ. फॉर ऑल द केसेस वी हैव 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस. दैट मींस कैन आई से n is 1 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर n. ये चीज फिक्स है. अब हम बात कर रहे हैं पहला मोनोएटॉमिक गैस का. मोनोएटॉमिक गैस, तो मैंने क्या किया? 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस ले लिया. ठीक है, इससे मुझे Cp और Cv का वैल्यू निकालना है.
बात समझ में आ गया? क्या निकालना बेटा? सीपी और सीवी का वैल्यू निकालना है। सीपी और सीवी का वैल्यू निकालने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी। क्या निकालना पड़ेगा मुझे? टोटल इंटरनल एनर्जी कितना है इस सिस्टम का। ठीक है, ओके। अब कुछ चीजें ध्यान से समझो। मैं आइडियल गैस कर रहा हूं, तो आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं। मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब इंटरनल एनर्जी निकालना मतलब क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस निकालना है। ठीक है, ऑफ द गैस निकालना है। क्लियर? क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस निकालना है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है आइडियल गैस में। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट देयर बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। मैं फर्स्ट टॉपिक में चला गया। तो मुझे ये जानना पड़ेगा पहले कि इंटरनल एनर्जी निकालना है मतलब क्या। अब इंटरनल एनर्जी क्यों निकालना है ये समझना बहुत जरूरी है। इंटरनल एनर्जी क्यों निकालना है? क्योंकि when we deal with the ideal gas at constant volume, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम में बात करता हूं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में जब हीट रिलीज होता है, ये होता है एमसी डेल्टा टी, हीट एब्जॉर्ब एंड हीट रिलीज। ओके, वी कैन से dq इक्वल्स टू dt। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम dq इज नथिंग बट du के बराबर होता है। ये हमने थर्मोडायनामिक चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द व्हाटएवर द हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने के बाद में सब करने वाला। ठीक है क्लास? ओके, तो मुझे पता चल गया मुझे क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होता है? हाफ के टी, एक मॉलिक्यूल का पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का कितना होगा? 3 इंटू हाफ के टी। क्यों? क्योंकि मोनोएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ के टी होता है, तो एक मॉलिक्यूल का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 के टी होगा, 3/2 के टी होगा। ये समझ में आ गया? एक मॉलिक्यूल का निकल गया। तो व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस? एक मॉलिक्यूल का निकल गया, तो इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Na। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, तो ये कितना हो गया? सो कैन आई से दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 3/2। व्हाट इज दिस? R इज K into Na, ये मुझे पता है। तो व्हाट इज K into Na? R 3/2 RT। दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मुझे मिल गया। पहले मैं क्या किया? एक मॉलिक्यूल का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो एक मॉलिक्यूल का निकल गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक मॉलिक्यूल का निकल गया, तो गैस का कितना निकलेगा? इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इंटरनल एनर्जी निकल गया। नाउ वी नो इफ देयर इज GQ amount given to 1 gram mole of a gas at constant volume, rising temperature is GT. Okay, and since it is given at constant volume, this GQ is nothing but du. 1 gram mole, m is 1, CV dt. तो what is CV? du by dt. ये सिर्फ फर्स्ट केस में मैंने समझाया है, नेक्स्ट केस में डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से काम करूंगा। तो व्हाट इज सीवी? डी dt ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? 3/2 RT। सो 3/2 R कांस्टेंट, बिकॉज ddt लिखा है, टेम्परेचर इज वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट होगा। ddt ऑफ T 1 हो गया। तो व्हाट इज CV? CV इज 3/2 R। ओके, R का डालो, CV निकल जाएगा। वी नो CP माइनस CV इज R। तो व्हाट इज CP? R plus CV, that is R plus 3/2 R, that is 5/2 R। CV भी मिल गया, sorry, CP भी मिल गया। Okay, now what is gamma? We know CP by CV. Put all the values. CP is 5/2 by 3/2. We can say 5/3 is the answer. ये हो गया मोनोएटॉमिक का कहानी। क्लियर क्लास? अब मैं करूंगा डायटोमिक का केस, ट्राइटोमिक नहीं करूंगा क्लास। तो देखो, मुझे पता होना चाहिए, मुझे इंटरनल एनर्जी निकालना है। अब मुझे पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस निकाल लिया, बिकॉज़ दैट इज ओनली इंटरनल एनर्जी। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि एट कांस्टेंट प्रेशर जो भी हीट रिलीज एब्जॉर्ब होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल। वहां से मुझे सीवी का वैल्यू निकलेगा। ओके क्लास? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायटोमिक। अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे, देखो। नेक्स्ट, डायटोमिक गैस। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का कितना होता है? 3 into 2 6 minus
1 दैट इज 5. 3a माइनस r होता है, डायटो में 2 एटम होता है और एक ही बॉन्ड होता है, तो 5 नहीं हो गया? हो गया. अब ये सब चीज करने का जरूरत नहीं है. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस डायरेक्टली यहां से फाइंड करो. क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 इंटू हाफ के टी इंटू एन ए. हो गया. 3 इंटू हाफ के टी इज फिक्स. कोई भी गैस में चले जाओ, पर डिग्री पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी इज हाफ के टी. बस उसको नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करना है. यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इंटू एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना कितना एनर्जी, इतना इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मिल गया यहां से. तो व्हाट इज यू इज 5/2 आर टी के इंटू एन इज आर. बुक में भी ऐसे किया है, सब कुछ वापस डिराइव नहीं किया है. अगर करना है तो भी करेंगे. एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी. एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल भी 5 इंटू हाफ के टी, किंतु डायरेक्ट में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो 5 इंटू हाफ के टी होगा. तो एवरेज काइनेटिक ऑफ द गैस कितना होगा? मैंने 1 ग्राम मोल लिया है, तो 1 ग्राम मोल में एक मॉलिक्यूल का इतना एनर्जी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू कर दो. क्लियर क्लास? ओके. उसके बाद देयरफॉर व्हाट इज सीवी? सीवी इज du by dt. फिर से डिफरेंशिएट कर दो. ddt ऑफ 5/2 RT. वेरिएबल इज टेम्परेचर, तो 5/2 R is constant. ddt of ddt 1, तो 5/2 R is CV. Formally substitute here, you will get CP. Okay class? So similarly you can go for the triatomy. That much you can do on your own. And please don't ignore this thing. It comes in the examination. Okay class? So this is the end of this chapter. Thank you very much.